take that year out of my business, I would not have become mentally tough. I would not have become what I am today. So every person coming into your business has a role to play. And you got to understand that. So addition phase is the hardest phase for most people. Hardest phase. Until 1000 PV, you are kind of like that. You are dealing with so many people who are asking you the same old question. Prices are expensive. Sometimes you wonder, man, can you ask me some other question? Why ask the same question, right? Because the nature of the pin, until 1000 PV, 1000, 1500 PV, you are like a joker. Everybody laughs at you. Okay, everybody laughs at you. Some of your downline who's 300 PV, even he laughs at you as if he's a prospect. Right? Gone through that. Like you are going around, you're showing the plan and you're doing that. And your 100 PV and 300 PV guys are also not core. Even though they are IBOs, they are actually prospects. Right? They're checking you out. Right? We have been there, right? As 100 PV, we have been there. You know how we were thinking as 100 PV. Sometimes, we were doubtful. We were checking our upline. Same way, your downline is going to do the same thing. And it's a nature. Addition phase. Same way, upline is all pumping energy to you. Upline is like, proud of you. Come on, join us. You can do it. All the stuff. And you are thinking, man, I wish you say the same thing to my downline. I'm all set. The real audience is my downline. Don't tell that to me, right? Okay? Right? And you are like, man, I have been a guarantee for my upline. I don't have any guarantee. How many of you feel that, right? Sometimes. Man, my upline is lucky he found me, but I don't have anybody. Look at me. I am so positive. I take order function tickets on time. My upline is lucky. And my downlines, if I show them the ticket, they will not see my face for the next 10 years. Right? Nature of the pin. Don't stay 1000. Hurry up and move on and have somebody else be the 1000. 1000 is like a positive shocks from upline, negative shocks from downline. Right? All uplines are creating a pull. And all downlines are also creating a pull. And you are stressed, man. Right? 1000 PV. Right? And then you move to 1500, 2500 PV. At the time you reach 4000, guess what? Your business is starting to change. Until then, you are everywhere. If you are not there, your business is not there. How many of you know, 1000 PV guy, you go on a holiday, your whole business is on holiday. Right? You order products, your downline orders product. You don't order product, your downline doesn't order product. Right? You feel like they are like organ of your body. Your downlines are organ of your body. It's like, if you're not there, they die. Right? That's how it is. We all have been there. It's hard, but we all have been there. You move through it. Move through it. Okay? How long? Whatever it takes. Now, slowly at 1000 PV, you might have maybe 7-8 people in your team. All are dependent on you. And you are one person, which is you, who are running the show. So as you move on to 1500, 2500, you are around 20 now, 3 people are running the show. And that's how network marketing works. Then you realize, you know what? This business is not just about people business, it's about a business of building teams and developing leaders. Now your total perspective about business changes. There is income, there is money to be made, big time. You see, you heard in the afternoon, 40 billion, they have given it to IBOs like you and me. So, 40 billion, somebody has made it. A lot of people have made hundreds of dollars. A lot of people have made thousands of dollars. You know that. You have seen the Achieve magazines and whatnot. So you cannot deny that there is no money. You got to understand how to put a team together so that the volume is created consistently, so that compensation is done consistently too. So the battle in this business is not about whether there is money or not. The battle in the business is how to put together a team such that you can have a pipeline of income. End of story. If you get that, you win it big in this business. Now, if one person has done it, anybody can do it.
There's no rocket science involved here. I had to figure it out. It took me almost 3.5 to 4 years. Q12 combined together 5 years to figure out this business. 3.5 to 4 years. Okay? Yeah, it was a slow start. It was like I got a snake all the time. I hardly had a ladder. In my team, Rashmi and Smita, you saw, right? They went Q12 in 18 months. They went almost quite fast. Okay? But you will get a break. No doubt about it. The biggest ladder in this business is your upline. That ladder will take you all the way. Okay? In my case, it was Raj and Sangeeta Shah. Took me all the way. Okay? They kind of guided me. And the biggest snake, in a snake and ladder, on 99 there is a snake. How many of you know that? It'll take you all the way back to 1. Right? And who's that snake? Don't look at your downline right now. He's not the snake. No, it is you. Your attitude about the business is a snake, biggest snake. It is a killer. A lot of IBOs have the potential, but they don't have the attitude to maintain the business. They give up too soon. Give up too soon. My upline gave up when I was a 600 PV. The sponsor. My sponsor said that this business would not work. He said, you know what, Ganesh, don't worry about it. Forget about it. I said, no, I've seen enough. Renew, buddy. I told my upline, renew. Right? In my case, I had to, upline, come on, do it. He didn't even listen. He quit. Today, look at the size of the organization. Double diamond, EDCs, diamonds, so many. Such a big organization he lost. Right? So don't give up. That's the biggest lesson I've learned is don't jump out of the boat. Thinking that you can swim. No, you're better off in the boat. Okay? You may not like all the people, but you're better off in the boat. And that's the first stage. Now, at 4,000 or so, your business will change. When you are showing a plan in one living room, in your team, there are some other people showing the plan in some other living room. Your business starts from addition, slowly it goes to multiplication. It multiplies. When you're in getting some IBO started, somewhere in another place, there is another IBO getting started because of your downline. You are talking to a team of 4 or 5 people, and then there is another place where your downline is talking to a team of 4 to 5 people. Duplication kicks in. Now slowly, your business is no longer completely dependent on your physical activity. It's also dependent on your mental activity. That means that on the way to show the plan, you're counseling one of your downline. You know what? For this month, this is if you can do this, you might be able to reach the bracket faster. On the way to a plan, on the way back from a plan. So there is a movement of people. There is a team being built using the words, not just using the marker. And that's a beautiful stage in the business. And everybody who stays consistent will go through that stage. So do not give up too soon. That's a multiplication stage. It'll take you from 4,000 all the way, 7,500 and beyond. And that is a beautiful stage. You will work hard, there is no doubt about it. You will work hard. You will still be working hard. Some of these emeralds are working really hard. Some of these Q12s are working really hard. But it's okay. It's a beautiful way to live a life. You're hitting it hard in the daytime at the job. Whatever it takes. Evening time, 6 o'clock, you're hitting it hard in the business. Sometimes your life probably might get out of balance. But it's in a beautiful way. Why? Because you're looking forward to it, because there is light at the end of the tunnel. And that's how you get platinum done. Sometimes you wonder, man, when will it ever happen to me? I can imagine happening to my upline, I can imagine happening to my crossline. When will it ever happen to me? Will I ever be on the stage? Sometimes we always underestimate ourselves and overestimate other people. But don't do that. We are no different. We have been on these colosseums and auditoriums and convention centers
For too many years, I've been in the business 20 years. Last 14 years, I've been full-time. I walked out of my job the same year my dad retired in India. I've seen business as a prospect, seen as a student, seen as a working, recruiting manager, and for the last 14 years, no job. So it is easy enough for a winner to do it. It is tough enough for a quitter to quit it. So it's like a litmus test. Okay? So the biggest variable in this business is not at all your downline or upline or a Amway business. Your variable will always be you. Eventually, you'll come to a conclusion that if I have to change my business, I have to do it. When you get to that conclusion, guess what? You have it. Because when we get started, we think that Amway is a business where if I am able to have a big downline team, I am able to build a big business. I am all set in life. That's what many people think. They think that, it's a people, okay, let me, sponsor some of my best friends and they will eventually build it. If I sponsor 3 people just like Bill Britt, if I sponsor 3 people just like Paul and Leslie Miller, if I sponsor 3 people just like all these new diamonds, I'm all set. That's how we all get into the business. We think that other people are better than us. Okay? But that's not how you go diamond. You might go emerald by luck like that, but you'll never go diamond like that. It's always about you. And that is a crossroad where you have to get to. Where you completely say, yes, I understand it. I have what it takes. I am ready to perform. I am ready to do it. There should be a calmness about the pin which you're shooting for, about the pin which you want to achieve in the next month. There should be certain calmness. That calmness comes through mental consistency. Your thought about that pin over and over again. If your goal is to go 7500, you have exercised your mind about that 7500. You thought about it. You know exactly what phases are going to come into your business. You know exactly which living room and den you are going to enter. You know exactly when you pick up a phone call what to say to that downline IBO. That is how you get that calmness about the pin which you're shooting for. The pin which you're shooting for should not give you a flicker in your heart. Man, how am I going to do it? How am I going to do it? No, you should be calm about it. And that is a stage. Understand, 7500 PV, Q12 with 3 to 4 legs, it's a good income. You know what? That's a good business. In my case, to get Q12 done, it was totally a 5-year deal. 5 years. You know what? I did not regret at all. I never gave deadline to this business. If I don't achieve in 5 years, I will quit. Otherwise, show it to me in 5 years. No, that's not how businesses work. They do whatever it takes. Look at Apple. The iPhone came into picture after decades of existence of Apple company. Decades. The biggest Corvette General Motors has ever made came in 2014. The best Corvette ever. They've been in existence for last over so many, close to 100 years probably. Understand, building business is different from having a career. Businesses can be given to the next generation. Look at right now, JP and Ritu Kapoor, children, Jeet and Anisha, a son and daughter, having the thought process of becoming an entrepreneur and not just piggybacking on mom and dad's diamond ship. They themselves building a diamond ship because they understand that maturity has kicked in at the age of 12 and 14. There's a generations, right? You passed it on. You cannot have that in a career. So what you are trying to build right now in a Colosseum, Memphis, Tennessee, October 2014, what are you going to learn? The way you're going to put teams together, it's not just going to impact you, but generations to come. Your son and daughter or somebody whom you are going to will the business are going to be impacted. Instead of taking this direction, you're going to take this direction in your
in your family. So understand that this is not just a business. It is a powerful opportunity. It is something which I hope you see the end result. And that is important for an IBO to understand it. Because we say sometimes, most IBOs do not understand the power of this business. Most IBOs. Because they're not taken time to think about the business. And then the last stage, you go from platinum to emerald and diamond. There will be a time where your downline will walk in some grocery store or something, and he has to remind you that he's in your team. Other than that, you may not even know. Isn't it a good situation? Right now probably you know every one of your downline's name because your team is small. You know their date of birth, anniversary, which office they work, their phone number, home number, social security number, everything, because you have a smaller team probably right now. But sooner or later, your team will be so big that somebody walking down, he will say, hey, I'm a silver in your team. And you'll be like, oh, is that so? Proud of you. Keep it up. And those days will come. And a lot of people backstage are in that situation. It may not come overnight, but it will be there for you. So you got to understand, what is this business all about for you? This weekend, if you don't get all these messages, you'll be like, man, they motivated me this weekend. There were some new diamonds, they motivated me, and go back home and do the same old. But if you really understand the depth of this, you'll be like blown away. Function like this in Richmond, Virginia, almost 19 years back, changed my entire life. It gave me a whole new meaning to this Amway business. And came back and really hit it hard, guys. I'm telling you, it is mind-blowing. Some of the people may not come the same year. When you're mentally, you are ready to give up, that is time when probably some of your best legs will come up. I remember sponsoring somebody who sponsored a couple called Bala and Anita. It was in Houghton, Michigan. There is a saying, end of the world is 4 miles, Houghton is 6 miles, something like that. Because it's so far. And it is so cold. And from there, and today, that organization has several emeralds, Bala and Anita, diamonds, IBO, qualifying founder diamond next year. And Paras and Hethel, qualifying founder emerald next year. And Joy and Vandana, new emerald. Raj and Sunita Nambiar, emeralds. So many legs from that one couple. Look at the power of the business. Hundreds of people everywhere. I sponsored my best friend, Vivek and Shanti. Next year they'll be in diamond qualification. They have a downline here, Ravi and Aarti Chawla, founder emerald. You know what? Sometimes I ask, where were you guys when I wanted you the most? They all came later on. I sponsored my roommate. Can you believe that? Sometimes roommates are the last ones to get started. In Wayne State, we had 6 roommates. Pramod gets started. And from that right now, the emeralds right now, Murli and Archana, Himanshu and Chavi, Sudhira, so many. In India, we have an emerald coming up soon in that leg. So, it's crazy. You stay in the business, renew. That's the biggest thing. Even today, every day I go and check. That's my job in Amway is to check whether my business is renewed in all markets. That's the biggest lesson I learned. That stay in the game. You never know when, how something will pop up. Because every time there will be somebody somewhere, someone will catch the dream and build it big. And it will happen to you. The best priceless moment is not about being a millionaire or something like that. The priceless moment is when your family understands what you're doing. Am I right? And the day will come. Some of your best friends or so may not understand the business today. Don't pressurize them. My parents never understood the business initially. But today, they're the biggest promoters of business. They don't promote in front of me, but behind me they say, you know what? You got to do what Ganesh does.
Before they used to say, no, you become a doctor, engineer, something like that. They felt business was taking away my eating habits, my sleeping habits, and it was driving me crazy. That's what they used to think. Every time 1 o'clock, 2 o'clock, I come back and go to office at 6, 7 in the morning. But things will change. Today, they fly only business class. My dad is 81, has an earphone and stuff like that, and listens to music. At my home, they live with me. And sometimes when people come out, they don't know who's the owner of the house, him or me. Intangible benefits. Kids understanding the future because of the Amway business. Amazing. Way Aditya and I sometimes talk to me, it's like, man, for that I would rather go diamond one more time. For that itself. Them getting an entrepreneurial mindset. Them understanding the impact of one person's dream. Look at our existence today. Because 1969, Bill Britt signed the dotted line, we are here. Even after he has passed away, we are here building our business. They say, right, legacy continues. Exactly. This is where it is. Legacy is continuing right now. Bill is no longer there. Legacy continues. Britt Worldwide. We were last year, I would like to wrap it up by saying this. Last year, one of Craig and Kerry's downline qualified, Vivek Khatri, qualified for this promotion. And along with him, Upline Diamond has to go. Smita could not go, so Rashmi came. I was tagging along with Rashmi. So we all went. And in Brazil, okay, Amway is taking us to this soccer game, World Cup soccer. Uruguay is playing UK. And after the match is done, we all were in the VIP section. And in Brazil, Sao Paulo, Brazil, it's in a southern hemisphere. When it is summer here, it is winter. When it is winter here, it is summer there. Totally opposite side. 10 hours of flight. And there, okay, and the crowd is coming out. Thousands of people, 60,000 people in World Cup soccer match. They're all coming out. And one of the guys sees a sign and says, hey man, Bill Britt. Can you believe? Out of nowhere. Out of nowhere. He mentioned the name of a IBO organization, Bill Britt. Look at the impact. Somewhere somebody was in his living room showing him the plan probably. He may not have gotten started, but he remembers the name Bill Britt. Someday somebody will remember the name because you chose to continue the fight. You chose to do what it takes and go diamond and beyond. There's a beauty about this business, folks. There is no price tag to it. Money, absolutely, abundance, lifestyle, cars, houses. But very soon, those will not have any meaning to you. People's lives will have meaning to you. When you see a couple's hand being raised in your own downline team, it will be more worth than you going crown ambassador. When I see today Jwalant and Asha's hands being raised and their kids on the stage, priceless moments. Because somewhere, not just them, their children have been impacted. Understand, every one of us have the same power. Every IBO has an equal opportunity, right? It's an equal opportunity. We all have different pins, but we have the equal opportunity to impact people. Some of us are in the beginning of the journey. Some of us are in the middle of the journey. So some of us have impacted more. Some of us have yet to impact. But understand, you will be able to impact a lot of people. So it's an awesome opportunity. Never give up. Don't lose the smile on the face. Always have that smile on the face, because tomorrow is a brighter and a bigger. Right, welcome friends, and was awesome talk. And to start with, वो मेरा प्रातःकालीन अभिवादन, and
Happy good morning to all of you, all the participants, and may I request रिक्वेस्ट क्या करें? आप सब जानते हैं जो मीटिंग के एंड में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जो कंफर्टेबल पोजीशन में है अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। एंड यस, हैंड रेज होने शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा अपना टेक अवे शेयर करूंगा। आज के हमारे जो स्पीकर थे वो बहुत ही कामयाब हैं हमारे अपॉर्चुनिटी में। उन्होंने बताया जैसा कि अगर आप इनके रिवॉर्ड्स को जान जाएंगे तो आप बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करेंगे इसको बिल्ड करने में, क्योंकि प्रैक्टिकली सही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स पीपल बिजनेस। ये लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बिजनेस है, समूह बनाने का बिजनेस है। जो 3 स्टेजेस के बारे में हमारे आज के सक्सेसफुल स्पीकर ने बात की, के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि हमारा जो 3 फेजेस हैं जो टीम बिल्डिंग के, जो सबसे जो हार्डेस्ट फेज है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, एंड दैट इज एडिशन फेज। जब आप आते हैं, मतलब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 पीवी तक होता है, थोड़ा सा आप ईज होने लगते हैं अगर वो 4000 तक टच करे या बियॉन्ड जाए। फ्रेंड्स, बिजनेस सेम है बहुत लेकिन इंडिविजुअल के रूप में ये बिजनेस सबके लिए अलग अलग है। इट इज अ स्नेक एंड लैडर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्नेक एंड लैडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम पहले तो स्टे करें अपॉर्चुनिटी के अंदर। वो हार्डेस्ट फेज होता है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं। वो हार्डेस्ट फेज से अगर आप क्रॉस कर जाएंगे, जो थ्रेशोल्ड टाइम है, तो फिर आप स्टे कर पाएंगे। जंप नहीं करना है, डोंट जंप ओवर। जो स्ट्रगल है, एनीवे मैं आपको और काफी हैंड रेज हो गए हैं, तो मैं सबसे पहले हैंड मैंने रेज देखा राहुल का। तो राहुल जी, यस, गुड मॉर्निंग, प्लीज शेयर थैंक योर यू इनसाइट। थैंक यू थैंक यू सर, अमेजिंग। और सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी थोड़ा गुड मॉर्निंग जल्दी हो गई थी बिकॉज राइट नाउ आई एम इन सिंगापुर। और पिछले लगभग 11-12 दिन से मैं इधर हूँ। और मेरे को लग रहा था बहुत सारी चीजें बतानी है, बट टाइम कम है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। और आज की ऑडियो तो अमेजिंग थी, बहुत बार सुनी है ना, मतलब मुझे नहीं पता कितनी बार सुनी होगी, बिकॉज ये फेवरेट ऑडियो है भावना मैम की, है ना। और उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी, एंड जब मैंने सुनी तो मुझे अमेजिंग लगी। तो बार बार जब भी मुझे लगता है कि, है ना, वो वाले फेज हमेशा लाइफ में आते हैं ना जो उन्होंने बताया, वो स्ट्रगल वाले, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, है ना, तो बार बार सुन लेते हैं उसको और लगता है कि नहीं, है ना, लेट्स डू इट, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप हो इसमें, है ना। और आलोक जी की हमेशा एक बहुत अच्छी सेइंग है ना, वो बोलते हैं कि अगर आप अपने लोग और परिस्थिति को हमेशा कोसते रहोगे, है ना, तो फिर ये बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होना, है ना। सो बड़ा मजा आ रहा है। मैं बस एक चीज को जरूर बताना चाहूंगा, बिकॉज सिंगापुर में हूँ, है ना, देश से इतनी दूर हूँ। और वो एक चीज हमेशा सुनते थे ना हम, कि यार फ्रूट्स को एंजॉय करो बिजनेस, है ना, कैसे फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं सारे अपलाइंस एंड ऑल, है ना। एंड आई एम एंजॉइंग दैट फ्रूट राइट, है ना। मतलब वो लग रहा है कि आप इतने दूर बैठ के भी आप बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो, है ना। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू दिस, है ना, एंटायर जो हमने सिस्टम बनाया है, थैंक्स टू अपलाइन जिन्होंने सारी चीजें सिखाई। और मैं सच में बता रहा हूँ आपको, है ना, मतलब मुझे अब रियलाइज हुआ है कि लाइक सोचते थे यार चलो बिजनेस बिल्ड करना है, वो फ्रीडम आएगी, घूमेंगे। अब सच में यहाँ पर आके, इतनी दूर आके, जब हम किसी के टच में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि यार हम चाहें भी किसी से मिलना, मिल ही नहीं सकते, है ना। अब लग रहा है कितना, मतलब कितना बड़ा बिजनेस है, आप सोचो, है ना। और मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे आपका बड़ा हो, है ना। एक मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूँ, इस बिजनेस को आप बिल्ड जरूर कीजिए,
ऐसा नहीं है मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, मैं 2 हफ्ते के लिए आया हूँ, आई एम हेयर फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ, है ना। आप सोच के देखो, अगर मैं जॉब में होता तो क्या मैं 1 महीने आ पाता, है ना, फ्री रह पाता? ठीक है, अगर मैं जॉब से आ भी जाता तो शायद मुझे सुबह फिर उठ के जाना पड़ता कहीं ना, है ना। अभी मैं आराम से उठता हूँ, है ना। जब आपकी इंडिया में मीटिंग शुरू होती थी यहाँ 10 बजता है। तो थोड़ा सा मेरे को 1 महीने के लिए भी छूट है कि मैं थोड़ा लेट उठ सकता हूँ। बट नहीं, है ना, मैं बस वो एक ऐसी चीज बोल रहा है ना, आई वेक अप एट 6 और मैं उठ जाता हूँ जल्दी यहाँ के हिसाब से। एंड अच्छी चीज है कि यहाँ कंपाउंड में जिम है। एंड मैं देख रहा हूँ, पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस, हम इंडिया में बात करते हैं ना, फिटनेस फिटनेस बॉस, आप आके देखो, बाहर आप देखो निकल के, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, व्हेन आई सी पीपल हेयर, लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, फिटनेस इज एवरीवेयर, है ना। तो उनको देख के पहले तो मैं जब 2-4 दिन आया, मुझे लगा चलो यार ठीक है, एंजॉय करने आए हैं, चलो मस्ती। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा कि मैं हम रात को वॉक करने भी जा रहे हैं तो लोग रनिंग कर रहे हैं, तो मेरे को जोश आ गया। मैंने कहा नहीं यार, सुबह उठ के फिटनेस तो करनी है ना। एंड यहाँ आके भी आई हैव लॉस्ट 2 kgs, है ना। इंडिया में 10 kg है, मैंने ऑलरेडी लॉस कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत 1-2 किलो बढ़ा लिया था, बट मैंने फिर से 1-2 किलो मेंटेन कर लिया अपना पूरा, है ना। सो आई जस्ट वांट टेल यू वन थिंग बॉस, इस बिजनेस को चाहे आप छोटा बिल्ड करोगे चाहे बड़ा बिल्ड करोगे, है ना, वो आप ही के साथ रहने वाला। आप कुछ भी कर लो जिंदगी, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब इज बैड, मैं कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने भी जॉब करी, है ना। लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि इस बिजनेस को आप बिल्ड करके एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस करो। मैं तो सच में आपको बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार जाओ आज अपने ऑफिस और उनको बोलो मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आऊंगा 1 महीने। मैं सच बता रहा हूँ, वो बोलेगा बॉस ठीक है, आना ही मत। है ना, जाओ, है ना। हो सकता है ऐसा, कभी नहीं हो सकता ना, है ना? तो ये छोटी सी बोलते हैं ना, पीस ऑफ माइंड की बात भी करते हैं, मतलब वो सारे वर्ड्स जो अपलाइन बोलते हैं ना, वो सब कुछ समझ आ रहा है, बस पीस ऑफ माइंड क्यों है। बिकॉज सुबह उठ के सोचने की जरूरत नहीं है यार, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसका काम करना है, क्या नहीं। ठीक है, बिजनेस है ना, अच्छा कॉल करिए अपने सारे लीडर से, बात करी, जूम ही कनेक्ट करने कनेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप इज एवरीवेयर, इंटरनेट इज एवरीवेयर, राइट। तो फ्रीडम, जो एक्चुअल फ्रीडम है ना, एक्चुअल, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव अचीव्ड एवरी, या मेरे को सब कुछ मिल गया, है ना। बट अगर छोटा बिजनेस भी आपका है ना, इफ यू आर हैविंग अ स्मॉल बिजनेस, उसमें भी आप इतने जबरदस्त फ्रूट एंजॉय कर सकते हो। शायद हो सकता है आप किसी कंपनी के सीईओ भी होगे तो भी नहीं एंजॉय कर सकते, राइट, है ना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बट आई एम टेलिंग यू, बिल्ड दिस बिजनेस। जितना भी आपको समय मिलता है दिन में, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप बहुत बिजी रहते हो, बट अगर आपके लाइफ में बिजनेस आ गया है, आप यहाँ पर पहली बार हो, या 1 महीना हो गया, या 10 साल हो गए, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, आई एम टेलिंग यू प्लीज, है ना। मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, राइट। सो अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है, और बिल्कुल इंडिया आएंगे तो और मस्ती करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे टेक अवेज भी मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है शायद जब मैं आऊंगा इंडिया तो अपनी टीम के साथ भी उसको अप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड बैक। थैंक यू राहुल जी। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ट्रिप बहुत शानदार है, और आपकी बातों से लग रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। विश यू great time out there. And next, I'll invite Jainlal sir. Yes. Good morning. Please go ahead. तो सर थैंक यू। इस सीडी में सर ने इतना अच्छा तरीका बताया कि हमको बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है। वास्तव में डाउनलाइन अपलाइन की बात बताई सर, जो आप अगर टीम वर्क कर रहे हैं, अगर आपका डाउनलाइन आपके साथ है, तब आपका इनकम जो है आपकी आनी शुरू हो जाएगा। अगर आप मतलब अपनी टीम के साथ नहीं, आपका टीम वर्क नहीं काम कर रहा है, तो वहां पर इनकम आने की संभावना कम हो जाती है, आपकी टीम बिखर जाती है। इसलिए हमको अपनी टीम को लेकर के साथ में चलेंगे, तो हमारा जो इनकम का पाइपलाइन है वो तैयार हो रहा है, और उस पर हमें को लगे रहना है, बराबर उस पर काम करना है। और कल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैं अपने डाउनलाइन के साथ जो है प्रतापगढ़ गया था, वो एक उद्यान अधिकारी के पास गए थे, वहाँ डेमो वेमो किए, वहाँ प्लान दिखाए हेल्थ का, उनको बहुत अच्छा लगा। डेली प्लस लिए और ग्लिस्टर लिए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट है, वो पहले पहले सुन चुके थे, लेकिन सुने थे लेकिन यूज नहीं किए थे। हमने उनको सामने डेमो दिखाया, विटामिन सी का, न्यूट्रालाइट डेली का, और चेरी आयरन का दिखाया, जो मतलब फीफाल जेड, और उसको दिखाया। तो उनको कैसा है कि यार आप लोग इतना जानकारी रखते हैं, क्या चीज आप दिखा रहे हैं, देखिए
आप लोग इतना नॉलेजफुल रखते हैं कि एलिमेंटल और मेटेलिक क्या चीज होता है, ये सब बता ही नहीं पाते कोई लिखता। हम लोग जिस एसोसिएशन में हैं वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी संगत बना करके ये रंगत आ रही है हमको जानकारी। हम भी नहीं जानते थे मेटेलिक एलिमेंटल क्या होता है, क्या चीज हमको खाना है। तो इस तरह से हमने बताया, देखिए इसमें चुंबक जो है टच करने पर कुछ नहीं हो रहा है, हमको खाना क्या है, एलिमेंटल खाना है हमको। लोग डॉक्टर लोग जो भले डॉक्टर हैं लेकिन हमारे साथ जो कंपनी खिलवाड़ कर रही है फीफा जेड दे करके, तो ये सब चीजें हम लोग अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा उनको लगा। और रास्ते में आते आते दो लोग जो हमारे कस्टमर हैं वो न्यूट्रलाइट डेली वो भी लिए। ग्लिस्टर तो भाई रिटेल होता ही रहता है, वो लोग मांगते रहते हैं, इतने भक्त हो गए हैं। तो ग्लिस्टर तो हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत अच्छा चल रहा है सर। थैंक यू सर। Great, great, Kanlal sir, and Zabardast retailing and vision for any of us. And next, YK Gupta sir, good morning. Yes. Very good morning. Happy good morning to everybody. और सर, डॉक्टर साहब, आपकी होस्टिंग एज यूजुअल बहुत ही शानदार चल रही है। और आज का सीडी गणेश नॉय सर, जो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, उनकी सुनी हम लोगों ने। बहुत सारी चीजें उन्होंने टीम बिल्डिंग के बारे में बताई। एक चीज जो हमें बहुत अच्छी लगी, जो लूडो के स्नेक और लैडर से कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया कि योर ग्रेटेस्ट लैडर इज योर अपलाइन। हमारी अपलाइन ही हमारी सबसे बड़ी लैडर है। अगर उसको हम पकड़ के रखते हैं तो हम किसी ऊंचाई तक पहुंच। एंड द ग्रेटेस्ट स्नेक इज नॉट माई डाउन लाइन। हम हमेशा सोचते हैं कि फला आदमी काम नहीं कर रहा, फला नहीं कर रहा, बट उन्होंने कहा कि योर ग्रेटेस्ट स्नेक इज नॉट योर डाउन लाइन बट इट इज यू। आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप अपलाइन से कनेक्टेड हो कि नहीं हो, आप बिजनेस को क्विट तो नहीं कर दे रहे हो। मैं कहा कि नेवर जंप आउट ऑफ द बोट थिंकिंग दैट यू कैन स्विम। आप हमेशा अगर बोट में बने हुए हो, बिजनेस में बने हुए हो, अपलाइन का हाथ पकड़े हुए हो, सिस्टम से कनेक्टेड हो, कभी गिव अप नहीं कर रहे हो, तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफल हो। ये उनकी सीख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हमें, वो मैंने शेयर किया। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बिल्कुल सही मैसेज है कि नेवर जंप आउट ऑफ द बोट। एंड यस, मुकेश सर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज गो अहेड। मुकेश जी, आप बोल सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर। और बहुत ही जबरदस्त सीढ़ी। और मैं तो सबसे अच्छा हैप्पी खुश है कि राहुल जी हमारे अपलाइन मतलब सिंगापुर से रख के भी मतलब जुड़े हुए। और सबसे अच्छा थैंक्स नलिन सर एंड आलोक सर कि हम इस टीम में जुड़े हुए रियली। क्योंकि आज तो लगता नहीं कि मतलब हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक दूर रह के भी हम एक साथ ऐसा लगता है एक फैमिली में, एक घर में, एक मतलब कमरे में बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं, 100 आदमी मतलब। तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स जू मच ऑल्सो। और आज की जो सीरीज के मेरा जो मेन टेक वे था कि नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कभी गिव अप हमें करना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी देखो, कोई भी चीज का इंसान तो करता है। मुकेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क बनाया एरिया में करें। आ जाइए। आज के डेट में लाइफ ने तो बनाया, तो अगर गिव अप करें। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी बेटर है, अब थोड़ा नेटवर्क एरिया ओके, में आ जाइए। ठीक है। तो हम हमें भी कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा हमें मतलब अपने टेक अवे लेते रहना, उसके साथ में काम करते रहना है, काम करते रहना पे। दूसरी बात है कि कल का मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हमारी टीम में हमारे टीम में मतलब कीर्ति पांडे करके है। तो उन्होंने जस्ट थर्ड पार्टी अप्रोच करके बात कराया, ठीक है। एक कोई मतलब हेल्थ चैलेंज है किसी का, तो उन्होंने बात कराने के बाद कुछ प्रोडक्ट उन्होंने रिकमेंड किया, मैंने कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किया, ओमेगा और प्रोटीन और एक चीज और थी था। तो उन्होंने बोला कभी भैया मुझे ओनली ओमेगा का ऑर्डर लगा दो, बाकी मैं प्रोटीन अगर मैं बाद में मंगाऊंगे। तो आज सुबह उनका ऑर्डर लगाया मैंने नए कस्टमर पे। ये मेरा कल का एक्सपीरियंस था। थैंक यू। बैक टू होस्ट।
Great. Again, next, I'll invite Rajen ji. Yes, Rajen ji, good morning. Please go ahead. थैंक यू तिवारी सर. हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम राजेंद्र सिंह सयाना है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ. बहुत जबरदस्त सीडी थी. हमने पहले भी सुनी इस सीडी को और मैं अपना टेक पे बताता हूँ. मैंने कुछ अपने लिए रूल सेट किए हैं और चूंकि हम कभी कुछ कर रहे होते कभी कुछ कर रहे होते तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ चीज मिस हो जाती है हम लोगों से और ये बाय डिफॉल्ट है और चाहते थे कोई भी नहीं. बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं तो जो मैंने अपने लिए 18 पॉइंट बनाई हैं वो मैं जस्ट शेयर करता हूँ आप लोगों से. अ, जो इस बिजनेस को हम कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए कर रहे होते हैं अपने लिए तो अपना पर्पस बहुत क्लियरली ढूंढना है. हालांकि ये बातें बहुत बार हुई हैं लेकिन मैंने उसको राइटिंग में बड़े अच्छे से जो है स्केच से लिखा है एक अच्छे उस पे और ताकि मेरे हमें सामने रहे कि इसमें से क्या चीज मिसिंग हो रही है. तो उसको कर रहा हूं मैं जो है ड्रीम गोल एंड स्ट्रेटेजी है ना. पहला चीज तो ये है ग्रेटिट्यूड करना कभी भी नहीं भूलना है. वर्बलाइजेशन इसका एक पार्ट है हमेशा करना है. विजुअलाइजेशन भी करते रहना है ना. और मेडिटेशन एक पार्ट है. मेडिटेशन भी आप मेडिटेशन आपको हमेशा पीसफुल बनाएगा और थॉट प्रोसेस को बड़ा स्ट्रांग बनाएगा. एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो मैं भी रोज करता हूं तो इसलिए कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए. करेक्ट एटीट्यूड मैं अपना एटीट्यूड हमेशा करेक्ट करूं उसको है ना. मतलब कोई भी चीज इसमें आ रही है उसमें तो उसको बड़ा उस पे एक ध्यान देना है. छोटी छोटी चीजें हैं. आइडेंटिफाई मेंटर किसी को अपना रोल मॉडल मान के चलना है. बहुत आइडेंटिफाई करना है उसको बहुत है ना. और रीड बुक हैबिट रोज बनानी है. मेक टू डू लिस्ट रोज क्या करना है उसकी लिस्ट बनाए. चाहे आपने 2 काम लिखे हैं उसमें 3 चीज लिखे हैं 4 चीज लिखे हैं लेकिन टू डू लिस्ट डेली बनानी है. फोकस्ड रहना है हमेशा. लर्न डेली कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं जो सीखते रहना है. डेली एक्टिविटी एक्टिविटी में डेली जब आप आपकी चीजें ये सब चीजें होती है एक्टिविटी आप करते रहेंगे. डेली एक्टिविटी होनी चाहिए. कट डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम समाज में रहते हैं सोशल मीडिया में है तो डिस्ट्रैक्शन होना वाजिब है. तो इससे इसको चेक करना है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं है. मीट न्यू पीपल हमेशा लोगों से मिलने की सोचना है. लोगों से बात करना है ना. ऑलवेज स्माइल आप हमेशा स्माइल रखें अपने उस पे. और एनकरेज अदर्स है ना. दूसरों को मदद करना और हेल्प अदर्स दूसरों की मदद के लिए सोचना हमेशा है ना. अपने सेल्फिश से उठ के काम करना है. तो कहीं ना कहीं बिजनेस इसमें समाइज हो जाता है आपका. ये मैंने अपने लिए सोचा है और इसलिए मैंने आपको शेयर किया. ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा. तो थैंक यू. बैक टू होस्ट. नमस्ते. बिल्कुल राजेंद्र सर, पॉइंट बाय पॉइंट आपने नोट किया है और हम लोग को शेयर किया. थैंक यू. एंड लोग अब थोड़ा सा मैं और आपको शेयर करना चाहूंगा जो मैंने नोट डाउन किया है कि आपका जो एडिशन फेज के बारे में जो बता रहे थे सर. तो एडिशन से फिर उसके बाद डुप्लीकेशन एंड देन मल्टीप्लीकेशन. ये तीनों फेज के लिए आपको तीनों स्टेजेस के लिए आपको रेडी रहना है. नेवर अंडर एस्टिमेट. एट द सेम टाइम नेवर ओवर एस्टिमेट एज वेल. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं ग्लोबली उनके साथ में इनिशियल सेटबैक्स हुए हैं सबके साथ. कोई भी ये नहीं है जो शिखर पे एकदम से इंस्टेंट पहुंच गया वहीं पे टिका हुआ. आपको ये याद रखना है कि आप ये बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपनी जनरेशन्स के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं. इनटैंजिबल बेनिफिट्स के बारे में उन्होंने बताया. वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं. मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड अदर बेनिफिट्स बिकम सेकेंडरी. इस चीज को थोड़ा सा विजुलाइज करने की आवश्यकता है. मीटिंग के समापन पे हैं हम लोग और अब हम अपने मेंटर्स को सुनेंगे उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे. तो मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर नलिन मिश्रा सर. मॉर्निंग सर, प्लीज गो अहेड. म्यूट है सर.
हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर तिवारी। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, सर्जन फ्रॉम प्रयागराज। बहुत ही हाई लेवल की टॉक थी जिसमें आप देख सकते हो कि आप बिजनेस में कहाँ हो। डिस्क्रिप्शन है हाउ योर बिजनेस ग्रोज, हाउ यू ग्रो एज अ लीडर। इस टॉक का नाम ही है लीडरशिप स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ द बिजनेस। तो अगर आप 1000 पीवी वाले लेवल पे हो, यानी 9% के आसपास, तो आप देखोगे कि आपकी टीम में जितना भी काम हो रहा है सब आप कर रहे हैं, है ना। फ्रॉम एडिंग टू मल्टीप्लाइंग, आप पहले ऐड करते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे अब इंतजार है उसका कि कोई मुझे मिले और कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपके टीम में एक नया बीएफआई हूं, और मैं उसे पहचानता भी नहीं हूं। अभी वो स्टेज मेरी मेरे बिजनेस में नहीं आनी है, लेकिन आएगी जल्दी। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कि कहीं हम गए हुए हैं, लखनऊ गए हैं, यहाँ गए, तो वहां कोई मिल रहा है कि मैं आपकी टीम में हूँ, बीएफआई हूँ। इतना तो होने लगा है कि अनजान लोग आके मिलते हैं, ये होने लगा है मेरे बिजनेस। अभी मैं दिल्ली में था अपने बेटे के पास, तो हम लोग एक दिन रात में खाना खाने गए, तो हम जहाँ बैठे थे उस टेबल पे एक लेडी उठ के आई। उन्होंने कहा, आर यू डॉक्टर मिश्रा, सर्जन फ्रॉम इलाहाबाद? मैंने कहा यस। तो हमारा जो बेटा और उसके फ्रेंड जो थे वो भी सब चौंके कि भाई अंकल तो बड़े फेमस है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप आप क्या अनिल नारायण सर के ग्रुप में हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर ब्रैज के ग्रुप में हूँ, और मैं आपकी टॉक सुनती हूँ, और मैं सोच रही थी कि कब आपसे मुलाकात होगी। मैंने कहा देखिए आज यहाँ हो गए एक रेस्टोरेंट में दिल्ली के। तो आई मीन अगर आप इस टॉक को सुनेंगे तो आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि अब अगला स्टेज मेरे बिजनेस में कब आने वाला है। एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन, जैसे अभी राहुल कह रहे थे ना कि जब आप छोड़ोगे नहीं तो होगा, लगे रहोगे तो जितनी भी स्टेजेस है वो आएंगी, जो भी इसमें हमने सुनी है। 1000 से आप 4000 पीवी में पहुंचेंगे, जहां आपके अलावा 2-3 लोग और काम कर रहे होंगे। उसके बाद फिर आप प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे जो चीजें हैं, आपका जो जो थॉट प्रोसेस है या जो एटीट्यूड है वो बदलता रहता है जिंदगी से। लेकिन काम वही करने होते हैं, काम तो लगातार वही करने होते हैं। तो बहुत बढ़िया टॉक थी, मुझे तो बहुत मजा आया। कल रात में मैंने 3-4 बार इसको सुना था, आज फिर सुना इसको। और ये एक ऐसा पैमाना है जिसके ऊपर रख के आप अपना बिजनेस को नाप सकते हो कि आज मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ, अब मैं आगे कहाँ पहुंचने वाला हूँ। बट उसमें यही है, शर्त यही है कि आप काम करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर तिवारी, बैक टू यू। थैंक यू सर। एंड बिल्कुल सही, इसके टेंजिबल इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स के बारे में आपने जो जिक्र किया, बहुत जल्दी आपको अ, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मैं आपका बीएफआई हूँ, हम लोग को पता नहीं है। बड़े बड़े लीडर से हमने सुना है कि कोई आके प्लैटिनम कहता है कि सर मैं आपके ग्रुप का प्लैटिनम हूँ, उनको पता ही नहीं। ये समथिंग जो कि मतलब आप इमेजिन करके ही आप एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। एनीवे, तो अब मीटिंग के एंड में हम लोग सुनेंगे अपने ग्रेट मेंटर, डायमंड लीडर, ऑसम पर्सनालिटी, आलोक सर। थैंक यू डॉक्टर तिवारी। और बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है ना, और सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सुना ही है स्टॉक को, है ना। और क्योंकि गणेश शेनॉय एक अलग तरह के लीडर हैं, और ये रिकॉर्डिंग भी यूएस की है ना। यूएस में वो कोई सेमिनार हो रहा है, एफईडी जिसको बोलते हैं हम लोग। और बिल्कुल देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को ये बार बार जो टॉक सुनाई जाती हैं, ये सिर्फ इसलिए सुनाई जाती हैं कि आप देखिए जो लोग इस बिजनेस को बड़ा कर गए हैं, वो लोग, उनका विजन क्या है, वो कैसे देखते हैं business को, है ना, वो कैसे ट्रीट करते हैं इस बिजनेस को। और दूसरी चीज, ज्यादातर लीडर्स की स्टोरी में आप सुनोगे कि किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, इनके केस में वो 3.5-4 साल था, कि जब ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है ना। एक रिवॉल्विंग डोर जैसे बोलते हैं ना, होटल में होता है, वो घूमता रहता है, इधर से जाते रहते हैं, उधर से निकलते रहते हैं लोग, है ना। और ये सब चीजें यदि इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, खाली सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। इसको बार बार सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि व्हाट ही वांट्स टू से, क्या बोलना चाह रहे थे, वो मैसेज क्या देना चाह रहे। और जैसे उन्होंने बताया ना कि मेरे को जो आज समझ में आ गया बिजनेस, और यदि ये जल्दी समझ में आया था तो मैं तो और फास्ट किया जा सकता था। ये समझिए इस चीज, ये असली जो मैसेज जो मुझे समझ में आता है वो ये मैसेज है कि यदि आज मैं इसको युद्ध स्तर पर नहीं कर रहा हूं तो कौन रोक रहा है,
और मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक आ गई बात, समझ में आ गई भाई। अब मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे बस का ऑप्शन ही नहीं लेना, ट्रेन का ऑप्शन ही नहीं लेना, तो बात ही खत्म हो गई, मैं देखूंगा ही नहीं उस तरफ, है ना। अब जब मेरे पे ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो मैं कैब करूंगा या बाई आ जाऊंगा। तो यदि आपको, आप डिसाइड ही नहीं किया अभी, तो फिर तो हम आ ही क्यों रहे हैं मीटिंग, पहली बात। और यदि मीटिंग में आ रहे हैं और सुन रहे हैं और फिर भी डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, तो फिर बैठिए अपनी अपने के साथ में, उनको बोलिए राइट सम क्वेश्चन, जैसे सयाना जी ने लिखा है, ये 20 चीजें मेरे को करनी है, आप ऐसे 10, 5, 20, 25 क्वेश्चन लिखो कि क्या चीज आपको रोक रही है, क्या चीज आपको डरा रही है, क्या चीज आपको किसी से बात नहीं करने दे रही है ना। आप समझिए दोस्तों, देखिए इस चीज को, जैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ऐसे आपके बिजनेस की हेल्थ कैसी जा रही है। यदि मरा मरा सा है 1 साल के बाद में भी, है ना, भाई शुरू शुरू में तो समझ में आता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चलो अभी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे साल भर हो गया और अभी भी मैं वैसे ही मतलब बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, तो क्या आप क्या क्या सोचेंगे। आप जाएंगे ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, भाई साहब ये पैदा हुआ था पिछले साल, जैसा हुआ था वैसा ही आज भी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें समझ, मतलब मेरे को लगता है यार, मैं 12th किया हुआ, मैंने समझ लिया इन चीजों को, और हम क्यों नहीं समझ रहे। तो फिर समझ में आता है कि यार वो 12th तो इसलिए किया था क्योंकि पढ़ाई समझ में नहीं आई थी, है ना। लेकिन जब बिजनेस समझ में आ गया तो फिर भी मैं उसी तरह से क्यों रहता, बताओ ना जरा मुझे। कॉमन सेंस की बात है। आप देखते हैं ना, अंगूठा छाप होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं। अरे भाई वो आज जब बिलियनर हो गए तो वैसे नहीं है, वो बदल गए हैं। तो ऐसे यदि आप इस बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे होगा बताओ जरा। वो तो स्टोरी होती है, ठीक है भाई, तब तक मैं, मेरे को नहीं समझ में आया था, फिर मैंने देखा टेक्नोलॉजी का टाइम आया, आई जस्ट जम्प इनटू इट। बिल गेट्स की जब आप स्टोरी सुनोगे, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मैनी। मेरे को तो लगता, मतलब देखिए, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ऐसा किया जा सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही हो जाए। बट मुझे लगता है कितना अच्छा होता है कि सिर्फ वो लोग होते हैं जो कर रहे हैं ढंग से business। लेकिन फिर मैं, ऐसा ऐसा यदि होने लग जाए तो फिर नेचर कहाँ रह जाएगी, फिर बताओ ना। फिर तो नेचर नहीं रह पाएगी ना, नेचर का मतलब ही है, और स्ट्रगल ही वो है। और इनफैक्ट ये तो कितनी बार बोला जा चुका है, अभी पिछले 15 दिन में 2-3 लीडर्स ने बोला, यार पैसे मिल ही किस चीज के रहे हैं, इसी चीज के तो मिल रहे हैं पैसे, और किस चीज के पैसे मिल रहे हैं है ना। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, कैसे लोग पहले, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, मैं 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार गया। मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, मैं लगभग 5 साल, एक अबोहर जगह है ना, फिरोजपुर में, अबोहर, ये राजस्थान के पास में है, और एक ट्रेन जाती थी सहारनपुर से, एसी ट्रेन। और मुझे ध्यान है, मैं और भावना, और हम लगातार, मतलब हर महीने 3 बार जाते थे वहां पर। हम किस लेवल पे थे उस टाइम पे, सिल्वर गोल्ड लेवल पे। क्या हुआ, 15% तक बिजनेस गया, फिर क्या हुआ आज पता ही नहीं। आज तो मेरे को अबोहर भी मेरे को सोचना पड़ा बहुत कि यार कौन सी जगह थी वो, है ना। बट हम क्या कर सकते थे उस टाइम पे, हमारे एक्चुअली में हम कुछ नहीं करते, कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। हर आदमी एक सही इंटेंशन के साथ, तैयारी के साथ में जब मेहनत करता है, और फिर फल देता है ऊपर वाला, वो पता नहीं कहाँ से फल देगा। और आज जब बैक ट्रैक करते हैं, जब पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी मेहनत कितनी सारी जगह की, वहां से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, या हुआ भी तो टेम्पररी हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं दोस्तों जहां से हमें लगता है कि वो जो मेहनत हमने वहां की थी ना, वो यहाँ से फायदा नहीं। और आज मैं आपको अपने सामने बता रहा हूँ, डॉक्टर मिश्रा थोड़ा ह्यूमिलिटी ज्यादा है उनके अंदर, है ना। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैं अभी हम लोग, मतलब ये तो कितनी बार हुआ है हमारे साथ में कि एएलएस में गए और फिर हम जाके पहली बार मिले अपने लोगों को। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे ग्रुप में ऐसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम है, यदि उनको सामने खड़ा कर दोगे तो मैं उनको पहचानता नहीं, नाम से जानता हूँ खाली। तो ये बिजनेस की तो ताकत है, सोचो। अच्छा, मैं तो बार बार बोलता हूँ, देखो आप ना रियलाइज करो, मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि किसी को भी समझाना नहीं है आपको, सुचवाना है। सुचवाओ किसी को, समझाओ मत। सुचवाओ का मतलब समझ गए, जस्ट मेक हिम और हर थिंक, है ना। आपने सुचवाना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। यदि आप, मैं, मेरे को ध्यान है कि जब भी हम लोग, मैं जब अपने लीडर्स को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हमने क्या किया।
जैसे राहुल ही बैठे हैं हमारे साथ में, मुझे अभी भी ध्यान है बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो ज्यादातर जगह अकेले ही जाता था, है ना, क्योंकि वैष्णवी अक्षत यहाँ पर थे और हम 4 लोग ही फैमिली में, है ना, जिस टाइम बिल्ड कर रहे थे हम लोग बिजनेस को। तो मेरे को ध्यान है कि उस टाइम पे जब हम लोग जाते थे तो एक बार राहुल जी का नंबर आया, है ना, मैच कर गई डेट। मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ मैं, चलोगे? हाँ चलो चलते हैं। करनाल जाना था, फिर दिल्ली जाना था, फिर वहां से वापस आना था। अच्छा, मेरे मन में ये था कि यार मैं अच्छे होटल में रुकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक का भी और दो का भी उतना ही लगना। कार जा रही है तो डीजल तो लगी रहा है उतना ही, तो चलो बात कर लेंगे। और अभी टाइम है तो थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे करके कैसे चेंज होता है। देखिए आदमी, ऐसा नहीं कि राहुल एमवे में नहीं थे, बहुत टाइम से थे एमवे, है ना, बीच में बाहर भी हो गए, पुणे चले गए थे जब वो, लेकिन कहीं ना कहीं थे बिजनेस में। और फिर जाते 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 शायद 1 घंटा यहाँ से दूर है, किलोमीटर में मेरे को नहीं पता, लेकिन 1 घंटा दूर है, पौंटा साहिब एक जगह है, हिमाचल में पड़ती है, बीच में थोड़ा सा हिमाचल हिमाचल का वो आता है। और आई होप कि बोर नहीं हो रहे होंगे आप, है ना, ये स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। और वहां पर एक पुल आता है, पुल क्रॉस करते करते, बात करते 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 राहुल ने मेरे से पूछा कि सर क्राउन एम्बेसडर की इनकम कितनी होती है? देखो पहला क्वेश्चन। और वहां पर मैंने, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या बोलता हूँ और क्या, क्योंकि मैं हर बार बोलते हैं ना, जब आप सही सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता यही बोला होगा मैंने। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा राहुल इस बिजनेस में लेवल के हिसाब से इनकम नहीं मिलती। वो पहला शायद वो ट्रिगर पॉइंट था जो राहुल, क्योंकि इंजीनियर है, एनालिटिकल है, शार्प है, तो इन्होंने पकड़ा उस बात को कि यार मतलब लेवल क्राउन एम्बेसडर। तो बोला मतलब इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा ये डबल डायमंड भी ज्यादा पैसा कमा सकता है क्राउन एम्बेसडर से। बोला अच्छा ऐसा हो सकता है कि? मैंने कहा हाँ। तो फिर वहां से शायद 2 ढाई घंटे का रास्ता और था, और फिर हमारी जो भी डिस्कशन चला होगा कि देखो ऐसे होता है, स्ट्रक्चरिंग होती है, इस हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिल्वर 1.5 लाख रुपए कमा रहा हो, एक एमरल्ड 1 ही लाख रुपए कमा रहा हो, क्योंकि स्ट्रक्चर से पैसा मिलता है। और वहां से फिर वो चीजें चेंज होनी शुरू हुई। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उस एक मैसेज ने उनको चेंज, लेकिन उस एक मैसेज ने उनको सुचवाया, है ना। एक जो वो एमवे बिजनेस कर रहे थे जिसमें एक ही रेस थी खाली कि बस लोगों को जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, फिर वो सामान खरीदेंगे, फिर वो पीवी होंगे, और 200 हो गए तो इतना होगा, 600, यही तो चलता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में। यदि मैं ज्यादातर लोगों से पूछूं वो यही, उनको बोलो तुम्हारा बिजनेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब बोल रहा सर अभी जुड़े नहीं है लोग। जुड़ जाए वो खाने खरीदने लग जाए, होने लग जाए, इसका मतलब वो पीवी को ही बिजनेस मान रहा है। 4,000 हुआ कि नहीं हुआ मेरा। इसीलिए मैं देखता हूँ बहुत बार बहुत सारे लोग बीएफआई होते हैं, उनका बीएफआई होता है, वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल, अरे यार मजा आ गया, इस महीने का तो हो गया मैं। और मैं मन में बोलता तो नहीं हूं उनको मैं, लेकिन मन में सोचता हूँ यार क्या मतलब, ठीक है आप हो गए बीएफआई, पता है बीएफआई क्यों है? क्योंकि कुछ आपके नीचे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं और कुछ वॉल्यूम हुआ है, इसलिए बीएफआई हुआ। बिजनेस बिजनेस नहीं बिल्ड हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या वो जो बीएफआई हुए हैं कल प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम होंगे? हो सकते हैं, होंगे, मैं गारंटी नहीं ले सकता। आप समझिए इस चीज को। और जो होंगे की बात करूं ना आपको दोस्तों में, तो ऐसे कितने लोग हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूं दोस्तों, जो सिल्वर गोल्ड हुए हमारे बिजनेस में, प्लेटिनम हुए। लेकिन वो क्यों हुए पता है? क्योंकि हमारे गोल थे वो। पता क्यों हुए? क्योंकि वो एक्साइटेड हो गए, मेहनत करने लग गए खूब, और वॉल्यूम कर लिए। लेकिन उनके बिजनेस फिर नीचे आ गए, और हम लोग के बिजनेस ऊपर 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 जाते हैं, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपको दोस्तों समझना पड़ेगा, देखो कि किस बिजनेस में आना है। सबसे पहले अपने को तो पक्का कर लो कि मैं हूं, एक डायमंड होने वाला हूं जिंदगी में, इधर उधर नहीं देखूंगा। जब मैं सयाना जी को देखता हूं तो मुझे ऐसा ही एक बंदा दिखता है, जब मैं राहुल को देखता हूं तो मुझे ऐसा ही एक बंदा दिखता है सामने। और मैं 2 लोगों के नाम लिया मैंने, औरों के नाम नहीं लिए अभी। और कारण है उसके पीछे क्यों नहीं लिए, है ना। पीयूष यहाँ पर है, उनका नाम उनको देख के मैं बोल सकता हूँ, मोहन भट्ट जी उनको देख के बोल सकता हूँ, है ना। बाकी एमरल्ड एंड फाउंडर एमरल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली बड़े लेवल्स हैं उनके। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्यों बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्या यहाँ पर और कोई फाउंडर प्लेटिनम नहीं है? प्लेटिनम है, बट क्यों नहीं नाम ले रहा हूँ? बिकॉज आई गॉट इट आउट, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी नहीं देखता हूँ उनके अंदर, है ना। मतलब जिस दिन मैं होस्ट होऊंगा, मेरा कोई होस्ट होगा, उस दिन मैं बोलूंगा। ये क्या बात हुई भाई, बताओ जरा मेरे को। जिस दिन आपकी टीम का कोई होस्ट होगा उस दिन आप बोलेंगे, ये क्या बात हुई भाई। मतलब चल क्या रहा है ये? आप सोचो थोड़ा सा, मैं जरूर चाहूंगा कि सोचो आप पैटर्न्स को, क्या पैटर्न है? क्या ये टीम पैटर्न है? नहीं है टीम पैटर्न। जब तक दोस्तों हम सब लोग इकट्ठा होके एक मिशन की तरह नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं होने वाला है।
आप सोच के देखो, जब आप, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लिया किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, किसी गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, वहां पर जब आप देखते हैं काम करते हुए, तो कभी ऐसा दिखता है कि ये इलाहाबाद की टीम है, ये वहां की टीम है, ये वहां, कुछ भी नहीं, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। कोई भी 10 लोगों की टीम बना दी जाएगी, दैट्स इट, खत्म। अब बताओ मैं क्या काम करना है, ये काम करना है, अच्छा चलो करते हैं, मस्ती में काम होता है। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? आप जानते हैं ग्रोथ इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम अभी एक तरह से नहीं सोच रहे हैं। अभी भी मैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स मेरे बिजनेस में हैं दोस्तों, जो डायमंड जा सकते हैं 2 साल के अंदर। और ये मैं बात किसी कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस मीटिंग में नहीं आता। ऐसे एक लीडर है, डॉक्टर मिश्रा को पता है, कुछ और लोगों को भी पता होगा, नाम नहीं लूंगा यहाँ से। मैं गारंटी देता हूँ, सोच के देखो कितनी पोटेंशियल है उनकी, कि 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल में डायमंड जाया जा सकता है। बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 25,000 पीवी करते हैं, है ना। ही इज हैप्पी कि यार मेरे को 2.25 लाख रुपए आते हैं, कभी 2 लाख रुपए आते हैं। परेशान भी रहते हैं, ये भी सोचते हैं कि बताओ, लेकिन सबमिट नहीं होता, है ना। बता दो बस कुछ मेरे को, कर लूंगा मैं, लेकिन मैं करूंगा अपने हिसाब से। कितने सारे लोग हैं दोस्तों, वो लोग ना, उनका माई ग्रुप सिंड्रोम है। माई ग्रुप सिंड्रोम का मतलब ये है कि मेरी डाउन लाइन में नीचे बात नहीं करनी है, वो तो नहीं करूंगा। बहुत छोटा बिजनेस हो जाता है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए बोल रहा हूँ, और मैं फिर जो मेरी स्टाइल भी है बोलने की और जो आदत भी है बोलने की, यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, 100% आपके लिए बोल रहा हूँ। कोई बिल्कुल उसमें, और मैं सामने भी बोल सकता हूँ, मेरे को कोई डर डर नहीं होता है उस चीज का, क्योंकि मेरे को पता है कि आप अच्छे लोग हैं, समझेंगे। जिसने ग्रोथ ग्रोथ करनी होगी ना दोस्तों, वो कभी अदरवाइज ले ही नहीं सकता। मेरे को नारंग जी यदि मुझे बताएं कि आलोक यदि ये काम कर लो, तुम ऐसे ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, भाई भगवान की कसम खा रहा हूँ, क्या बुरा मानूंगा मैं? यार क्या मैं पागल हूँ क्या? तो इसलिए दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं, जो चला गया वो चला गया, है ना। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल प्रीति यहाँ पर है, आपको सबको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत बड़ा बिजनेस उनका भी हो गया। बट जो एटीट्यूड है ना उनका, मैं बहुत ऊपर रखता हूँ उनको उसके लिए। और ये मैं सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। और साथ साथ में नेचुरली एक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि एक होता है पोटेंशियल, और एक होता है फिर उसको रियलाइज करना, पूरा अंत तक ले जाना, है ना। और मुझे पता है वो होना ही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, यू शुड कम अप। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, बोलता ही नहीं है कोई कुछ भी। बताओ कितनी बार बोला जा चुका है, यार क्यों नहीं बोलते? बताओ ना, क्या है बोलने में दिक्कत? मुकेश रोज बोल रहे हैं, जयनलाल जी रोज बोल रहे हैं, क्या बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो? बहुत अच्छे का मतलब ही नहीं है यार, क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ ना जरा मुझे, है ना। और फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये बोलने से कल आपने बोल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप समझो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलो, वो तो मैं इसमें लिख दूं यदि कि भट्ट जी आप बोलो, पीयूष बोलो, तो बोल ही दोगे ना फिर तो। वो अंदर से आना चाहिए यार। और फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जो सबका सोचेगा ना, जो एक टीम के साथ चलेगा, उसी का वही आगे बढ़ने वाला है, नहीं तो बहुत छोटा सा बिजनेस हो जाएगा। यदि एमवे बिजनेस में आपने समझ लिया और आप फुल टाइम हो गए और आप 10 15 20 हजार पीवी ही कर पा रहे हैं, बहुत छोटा बिजनेस है, बहुत छोटा बिजनेस है। वैसे तो वहां भी नहीं पहुंचा जा सकता जल्दी से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उतना भी हो गया तो कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ बिजनेस। खूब बड़ा बिजनेस यदि बनाना है ना दोस्तों आपने, तो आपको बिल्कुल खुल के खेलना पड़ेगा। आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं चाहिए। जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हो, आप ही आप होने चाहिए। और क्या मैं क्या सर्वर हूं, मैं क्या कर सकता हूँ प्लेटफॉर्म, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत जबरदस्त महीना जा रहा है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, है ना, क्योंकि ऑफर्स भी बहुत जबरदस्त हैं और अभी फेस्टिव सीजन है। और पक्का मेरे को तो लग रहा है, जो यदि गिफ्टिंग होगी आपकी, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से गिफ्टिंग में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लाया जा सकता है ना। बैग वाला ऑफर बहुत ही जबरदस्त चल रहा है ना। और सोचिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोला जाता है ना, इस बिजनेस की सोच आपकी कौन सी होनी चाहिए? सोच होनी चाहिए कि ये बिजनेस मैं एक एसेट बिल्ड कर रहा हूँ। जस्ट थिंक लाइक दैट, आई एम बिल्डिंग एन एसेट। 3 6 9 12 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसेट बिल्ड कर रहा हूँ। और एसेट कब बनती है पता है आपकी? जब लीडर्स आप बिल्ड करते हैं, जब उनका माइंडसेट बिल्ड करते हैं, राइट। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू, कि आप लोग जो भी मैं बोलता हूँ, शायद उसको राइट पर्सपेक्टिव में लेंगे, है ना। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं एक मिशन बना लो कि मेरे को इस मीटिंग में, सुबह वाली में, लोग बढ़ाना है, बस। आप देख, मैं बता रहा हूँ जितने लोगों की बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, मैं देख रहा हूँ सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो लोग हैं
जो लोग फोकस कर रहे हैं इस चीज पर, और फिर देखो क्या हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, मी एंड भावना ऑलवेज विद यू। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू डॉक्टर तिवारी, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। Thank you, sir, for your words of encouragement to all of us. And मीटिंग के समापन में हम लोग अपना नया नारा जो है वो बुलंद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ सबको अनम्यूट करने का। Let us start. 1, 2, 3. I am the best. I am the best. I am the best. Best. I am the best. I am I the am the best. best. I am the I am the best. I am the I am the best. Thank you and good day to all of you. I am the best.